Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are learning elements of account class 12 English medium. I hope you all are doing well at home and watching the videos regularly. Students, from last few videos of accounts, we have completed chapter number 1, chapter number 3, chapter number 4, and the last one was chapter number 7, dissolution of partnership firm. From part 1 we have completed these 4 chapters and remaining will be completed after few days. But from today we are going to start part 2 accountancy, and from that book we are going to start the chapter number 1, which is accounting for share capital, which is totally based on company's account. Let's start. This is the lecture number 1 of this chapter, and we will continue part 2 after coming from coming lectures. Let's start. Students, this is the content from your part 2 textbook, and first one is accounting for share capital. This chapter contains total 10 marks. How many marks? 10 marks, which are as 1 plus 1 plus 8 is equal to 10. From this chapter, these 3 questions will be asked in total 10 marks. First question will be asked as MCQ. Second question will be asked as one liner, and the 8 marks question will be asked in the section E. There will be total 3 questions, and one of 3 question will be from this chapter. Okay students, let's start this chapter with the introduction. Where is this is the chapter number 1, accounting for share capital. तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन क्या है स्टार्ट कर देते हैं अपने. Company firm came into existence after industrial revolution due to limitations of proprietorship and partnership firms in carrying out business on a large scale. Students, पार्टनरशिप फर्म ये हमने पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 से देखा है. जितने भी चैप्टर्स हमने क्लियर किए, ऑल द चैप्टर्स वर बेस्ड ऑन पार्टनरशिप फर्म. तो 11th स्टैंडर्ड में हमने जो सीखा था अकाउंट, दैट वाज बेस्ड ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप because of some limitations and management issues to advance the business at a large scale. The existence of partnership came into exist. ठीक है स्टूडेंट्स, 11th का जो अकाउंट्स था वो सोल प्रोप्राइटरशिप पर बेस्ड था. क्लियर है. उसके बाद में उसकी कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आई, और अब जो है पार्टनरशिप की लिमिटेशंस की वजह से कंपनी का एग्जिस्टेंस हुआ है. बराबर. तो कंपनी का एग्जिस्टेंस क्यों हुआ है? क्योंकि बिजनेस को एट अ वेरी लार्ज लेवल या लार्ज स्केल पर अगर आपको लेकर जाना है, काफ़ी ऊंचाइयों पर बिजनेस को लेकर आना है, काफ़ी बड़ा बनाना है एट वर्ल्ड लेवल, तो आपको जो है कंपनी फॉर्म में आना पड़ेगा. इन द मॉडर्न एज कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस. ये क्लियर है. सो company collects its own capital from several persons. Joint stock company is an association of persons and has a objective of carrying out some business for profit. कोई भी टाइप का बिजनेस हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट होता है. लेकिन जो कंपनी है इन द मॉडर्न एज, कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस. सीधी सी बात है, कोई भी बिजनेस हो, किसी भी टाइप का बिजनेस हो, कैपिटल इज मस्ट रिक्वायर्ड. कैपिटल के बगैर आप लोग बिजनेस नहीं कर सकते हो. तो बिजनेस को अगर लार्ज स्केल पर टू कैरी ऑन द बिजनेस एट अ वेरी लार्ज स्केल, यू नीड कैपिटल, मोर कैपिटल. Company has a separate legal existence by law. Incorporation, management and winding up of companies are covered by the provisions of Company Act. ठीक है स्टूडेंट्स, जो कंपनी का सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस है
द कंपनी एज वेल एज वाइंडिंग अप मीन्स डिसोल्यूशन बोल सकते हो, लिक्विडेशन बोल सकते हो, कंपनी को शट डाउन करना हो, तो ये सारी जो है गवर्नड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट। तो आपको याद होगा पार्टनरशिप में भी ऐसा कोई एक्ट था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, विच कंट्रोल्स द पार्टनरशिप। अगर कुछ भी पार्टनर्स में डिस्प्यूट होता है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हु विल मैनेज? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेम थिंग हियर इन कंपनीज अकाउंट। कंपनीज अकाउंट जो है कंपनी एक्ट बनाया गया है इसके लिए, और कंपनी एक्ट जो है इसको मैनेजमेंट करता है। इन इंडिया फर्स्ट टाइम a separate act for company was made in 1956. It is known as Company Act 1956. Recently, Indian government has incorporated new Company Act 2013 after necessary amendments in previous act. 1956 में जो है कंपनी एक्ट बना था, और उसके बाद में उसमें जितने भी चेंजेस करने थे, वो चेंजेस करने के बाद न्यू अमेंडमेंट के साथ में जो नया एक्ट बना है वो है कंपनी एक्ट 2013। अब बोलो आगे क्या है। दिस चैप्टर डील्स हाउ अ कंपनी रेज द कैपिटल। इट डिस्कसेस सेवरल पॉइंट्स इन दिस रेफरेंस, देयर अकाउंटिंग इफेक्ट्स इन द कंपनीज बुक्स एज पर कंपनी एक्ट 2013। ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टाइप्स ऑफ कंपनीज। टाइप्स ऑफ कंपनीज में पहले आता है स्टैट्यूटरी कंपनीज या फिर कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशंस में क्या क्या आता है? दीज कंपनीज और कॉरपोरेशंस आर क्रिएटेड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर। फॉर एग्जांपल, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, Gujarat State Civil Supplies Corporation, etc. So these kind of companies are included in the corporations, or you can say statutory companies. Second type जो है वो है registered companies का। The companies which are registered and formed under the Companies Act are called registered companies. Most of the जो भी कंपनीज कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है उन कंपनीज को हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज। तो रजिस्टर्ड कंपनीज के भी टाइप्स है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंपनीज। फर्स्ट वन इज प्राइवेट कंपनी एंड द सेकेंड वन इज पब्लिक कंपनी। तो चलिए प्राइवेट कंपनी क्या होती है, तो आपने देखा ही होगा कि अक्सर कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनके नाम के पीछे लिखा होता है पीवीटी लिमिटेड, मीन्स प्राइवेट लिमिटेड। अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन restricts the rights to transfer its shares, limited the number of its members to 200, prohibits any invitations to the public to subscribe for any securities like shares, debentures of the company, must have at least 2 members। तो प्राइवेट कंपनी का लिमिटेशन है, उसमें एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम जो है 200 होने चाहिए, बराबर। और भी बहुत सारी लिमिटेशंस है। जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स जो हैं उसका राइट जिस कंपनी के पास होता है वो है प्राइवेट कंपनी। मेंबर्स की लिमिट होती है, और किसी भी टाइप का इनविटेशन पब्लिक को अपने सिक्योरिटीज़ को मतलब शेयर इश्यू करना हो, डिबेंचर इश्यू करना हो, तो उसके जो राइट्स है वो प्राइवेट कंपनी के पास ही होते हैं, बराबर। फिर the name of a private company ends with the word private limited. For example, Panchvila Cotton Private Limited, Apex Hydro Private Limited. As per New Companies Act, one person can form a company under the necessary legal provisions. Any प्राइवेट कंपनी, तो अभी जो है न्यू लीगल एक्ट के थ्रू ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी या सिंगल पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट द कंपनी। सिंगल पर्सन भी जो है कंपनी ओपन कर सकता है, और ही और सी कैन रन द कंपनी थ्रू द कंपनी एक्ट। चलिए आगे देखते हैं पब्लिक कंपनी।
पब्लिक कंपनी का मतलब होता है कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी इज़ कॉल्ड पब्लिक कंपनी। चलो वो ठीक है। अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 मेंबर्स। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। द नेम ऑफ अ पब्लिक कंपनी एंड्स विद द वर्ड लिमिटेड। फॉर एग्जांपल कर्नावती टेक्सटाइल लिमिटेड, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बराबर। तो इसमें मेंबर्स जो हैं उनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, कितने भी मेंबर हो सकते हैं, 5000, 2000, 10, बराबर। एटलीस्ट 7 होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। बेस्ड ऑन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स द कंपनीज आर मेनली 3 टाइप्स। पब्लिक कंपनी जो है इट हैज़ 3 टाइप्स। तो चलिए देखते हैं 3 टाइप्स में क्या क्या है। फर्स्ट टाइप इज़ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। In these companies, liability of the shareholder is limited up to the extent of the face value of shares held by them. Most of the companies are of this kind. तो जो कंपनीज की लिमिटेशंस है थ्रू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। फेस वैल्यू का मतलब होता है ओरिजिनली जो शेयर की प्राइस होती है, लाइक जिस प्राइस पर वो शेयर का जो होता है ना सर्टिफिकेट होता है, उसके ऊपर जो भी प्राइस लिखी जाती है उस प्राइस को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। तो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। In such companies, at the time of liquidation, the liability of shareholder is limited to a specific amount as guaranteed. Usually, such companies are not for the purpose of earning profit, but it is formed for the purpose of promoting different activities like art, science, sports, culture, social welfare. जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो देखते हो BCCI, NGOs किसी भी टाइप के चलते हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो गारंटी मतलब गारंटी के जितने ही लिमिटेड है, गारंटी के बाहर नहीं जा सकती। फिर आता है कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये वाली देख लेते हैं। In this type of company, there is no limit on the liability of its members. It means when a company suffers loss, the company's property is not sufficient to pay off its debt. The private property of its members will be used to meet the claims of creditors. मीन्स ये तो वही बात हो गई जैसे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म में हमने देखा था। अ पार्टनर इज़ रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। तो उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है। एज द रिस्क इन्वॉल्व इन सच कंपनीज इज़ टू हाई, सच कंपनीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया इवन दो परमिटेड बाय द कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट अगर इनकी परमिशन देती है फिर भी इंडिया के अंदर जो इस टाइप की कंपनीज नहीं पाई जाती, नहीं देखने को मिलती, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और इंडियन पब्लिक डू नॉट प्रीफर रिस्क, बराबर। तो ये टेबुलर फॉर्म है, उसमें आपको क्लियरली दिखा हुआ टाइप्स ऑफ कंपनीज, देख लो। टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन ऑफ मेंबर में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, बराबर। फिर उसमें लिमिटेड बाय शेयर्स में आता है तीनों के तीन जो है ये पब्लिक कंपनी है, गारंटी वाली प्राइवेट कंपनी है और कंपनी बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये जो है 1 पर्सन कंपनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो मेनली जो आपको मैं बताऊं ये मेन टाइप्स जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की है उस तरीके से आपको लर्न करने हैं। एग्ज़ाम में ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको फॉर द अंडरस्टैंडिंग ये दिया हुआ है, बराबर। तो चलिए आगे देखते हैं। शेयर एंड शेयर कैपिटल, मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स, बराबर। तो पहले आपने ये देख लेते हैं शेयर क्या होता है। ऑलमोस्ट आप लोगों को पता ही होगा, कॉमर्स फील्ड से हो तो शेयर्स के बारे में तो सुना ही होगा। कैपिटल ऑफ कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। कोई भी कंपनी जो है वो जितना उसका कैपिटल है उसको बोलते हैं हम शेयर कैपिटल, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल स्मॉल डिनोमिनेशंस। इच सच यूनिट ऑफ डिनोमिनेशन इज नॉन एज शेयर। कहने का मतलब टफ वर्ड था। अब इसमें मान लो कि कोई कंपनी जो है 50 लाख की है, कितनी है 50 लाख की कंपनी है, और उसको हमने मान लो
कि टोटल 5000 शेयर्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं कि भाई 5000 शेयर्स की कंपनी बनी हुई है, तो टोटल कितने शेयर्स हुए, कैंसल कैंसल कैंसल, और 5000 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 1000। तो पर शेयर, एक शेयर की प्राइस कितनी हो गई यहाँ पर 1000 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है कंपनी, कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, देखो फिर से बता देता हूँ एक बार, कंपनी ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर कैपिटल विच कैन बी, जितने कैपिटल की बनी है उसके छोटे छोटे जितने भी पार्ट्स बनते हैं, ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। बोला ना मेरा शेयर कितना है, तो वो कंपनी के कैपिटल के जो शेयर्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, उसको हम शेयर बोलते हैं। टू रेज कैपिटल कंपनी इश्यू प्रोस्पेक्टस एज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड इनवाइट पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर्स। तो कभी आप देखते होंगे आईपीओ इश्यू करती है कंपनी, शेयर्स इश्यू करती है पब्लिक में, जो भी इंटरेस्टेड पब्लिक होती है वो कंपनी के शेयर परचेज करते हैं, बराबर, बाय करते हैं। दोज हु परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड मेंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। एज लॉन्ग एज द शेयर आर हेल्ड बाय दिस पर्सन ही इज कॉल्ड शेयर होल्डर और को ओनर ऑफ द कंपनी। तो जिसके पास भी कंपनी के शेयर है उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर या फिर को ओनर बोलते हैं। For shareholders who has purchased or is in possession of the shares indicate the proportion of his ownership in the company. His share is allotted a distinctive number. Share is an asset which is movable and transferable. ये वाला याद रखना, खास करके वन लाइनर में पूछ सकते हैं। What kind of asset share is? तो share is an asset which is movable and transferable. According to the Companies Act, a company may issue two types of shares, preference share and equity share. आप बीए के सब्जेक्ट में भी ये सब पढ़ते होंगे, बीए में सब आता रहता है। तो इसमें जो टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं उसमें जो मेन टाइप हैं, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ शेयर्स। फर्स्ट वन इज़ प्रेफरेंस शेयर एंड द सेकेंड वन इज़ इक्विटी शेयर। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वी शैल मेट in the next video. Till then, stay home, stay safe and keep smiling.